So moving over to the technical topics. So पहले मैं नॉन टेक्निकल डिस्कस कर दिया. Right now I'll talk about the technical topics, most important, and at the end I will unleash basically the dates and times of the mock tests that I'm going to take. Stay tuned for that, and links I will post in the Telegram channel. Talking about your fluid mechanics, starting with fluid mechanics actually. Fluid mechanics, देखिए, if I talk about fluid mechanics, the weightage is quite high and mostly the questions, देखो fluid mechanics तो बहुत ज़्यादा vast chapter है, but two things I would like to say over here, 2 to 3 things. Firstly is the head loss in pipes. Okay, इससे थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाला है, मतलब क्वेश्चंस आने वाला है. हेड लॉस इन पाइप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना. पंप एंड टर्बाइन जरूर से अच्छे से पढ़ लेना. एंड सर OCF में, ओपन चैनल फ्लो में, द प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक स्पेसिफिक एनर्जी वगैरह वगैरह एंड ओपन चैनल फ्लो एंड द प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस, वो M1 वगैरह. तो वो जो है थोड़ा देख लेना, लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस आ सकता है सर उससे. 4 टॉपिक बताया, याद है? नहीं याद है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना. नेक्स्ट इज योर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में से सबसे पहले आता है हाइड्रोलॉजी. उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है हाइड्रोलॉजी का, बट स्टिल आई वुड से एटलीस्ट गो फॉर द 6 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट एक्चुअली, बट स्टिल यू कैन गो फॉर द लास्ट मोमेंट एक्चुअली, द W&5 इंडेक्स, द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स पार्ट, the average precipitation or the average rainfall part, and also the hydrograph part. Hydrograph से सर क्या क्या questions आ सकता है from there, different types of hydrograph, what are the uses of which type of hydrograph, which hydrograph is used for which purpose actually, that you can have a look at the last moment. And hydrograph related जो basic questions है, that is the depth of runoff is equal to area of the hydrograph by area of the catchment. ये जो मैंने सिखाया था आप लोगों को किस तरीके से, इस related question भी you can face. Okay, now talking about irrigation engineering, where from you can expect 8 to 10 questions. वहाँ पे सर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ये फोकस मेरे ख्याल से होने वाला. दैट इज योर डैम, रिजर्वॉयर, स्पिलवे एटसेट्रा एटसेट्रा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पार्ट से. बट या क्वेश्चंस विल ऑब्वियसली देयर फ्रॉम वाटर डिमांड. वहाँ से तो क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा. इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेरे ख्याल से ज़्यादा ओनस इस बार रहेगा ऑन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फॉर दिस डैम, रिजर्वॉयर एंड स्पिलवे. हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ओनली. ओके, moving over to the next most important topic, that is your building material and construction. So building material and construction का weightage काफ़ी ज़्यादा होता है, syllabus भी बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हो. But I would say that the last moment revision is actually going on for building material and construction. So just go and watch that out in the app. All the links are shared in my Telegram channel. Last 3 या 4 दिन का 4 या 3 revision class होगा, and 1 complete mock test on building material will be there, which contains actually the most expected questions for building material construction. So be there and attend that. तो मैं फिर भी कुछ important topics आपको बता रहा हूँ. देखिए, frankly speaking, that is your concrete. If I talk about, it's a huge chapter, but classification of concrete, special concretes, for example, aerated concrete, and this kind of the special जो concrete actually. Cement में भी सर high alumina cement, Portland Pozzolana cement, something like that. तो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट है, स्पेशल सीमेंट है, उसको ज़रूर देख लेना सर एक बार. एंड द टेस्टिंग ऑल्सो, टेस्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट, वो भी सर एक बार देख लेना ज़रूर. सीमेंट, इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअली, सीमेंट में द बोक्स कंपाउंड्स रिलेटेड टू दैट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट्स एक बार देख लेना ज़रूर. इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है मेरे ख्याल से दैट लाइम एंड मोटार से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम, स्लेक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, किस में कौन सी इम्प्योरिटीज़ रहता है, कौन सा, किसका पर्पस क्या है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. एंड अब स्टील से एक आध क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअली, स्टील एंड अदर मेटल्स एक्चुअली कंपैरिजन, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन यू कैन फेस. एंड लास्ट जो चैप्टर एक होता है ना, वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहाँ पे जो पेंट, वर्निशेस ऐसी चीज़ें है, वो भी सर एक बार आप देख सकते हो अच्छे तरीके से. इफ़ आई टॉक अबाउट टिम्बर में डिफेक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन ये ज़रूर देख लेना एक बार. डिफेक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन, ओके, ज़रूर सर देख लेना. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रिक्स में सर जो बॉन्ड्स है वो, एंड ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स एंड बैट्स, वो एक बार देख लेना, ये दोनों चीज़ें. ओके, एंड वो स्लेंडरनेस रेशियो वाला चीज़ भी एक बार देख लेना, दैट फॉर विच टाइप ऑफ मोटार विच टाइप ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इज यूज्ड एक्चुअली, राइट, वो चीज़ देख लेना ब्रिक मैसोनरी में. Moving on to construction planning and management, which I would say that I partially discussed in project management. Okay, but still 12 to 14 questions you can expect from here. And if I talk about
पर्ट एंड CPM से सर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो ओवर ईयर, एंड पर्ट से वो Z प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा बेस्ड जो क्वेश्चन है वो, एंड ऑल्सो CPM पर्ट से आपके फ्लोट एंड स्लैक बेस्ड प्रॉब्लम यू कैन एक्सपेक्ट that this is float, what is the total float, what is the intermediate float, something like that, what is the independent float, and also the diagram based question जो कि मैं project management बताया था यहाँ पे बता रहा हूँ, crashing also, that is very important thing, most important which is here actually, that is your engineering equipments. I have a dedicated class on engineering equipments, ज़रूर जाके देख लेना, ऐप में मेरे प्रोफाइल में है, just visit my profile, I will leave the link in the description, visit that and you will have the वॉच ओवर ईयर एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमी रिलेटेड जो क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 चीज़ हमेशा याद रखने के लिए बोला था, पहले भी बोला हूँ, कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड योर सिंकिंग फंड फैक्टर एंड ऑल द अदर फैक्टर्स लाइक दिस एक्चुअली, वेयर फ्रॉम यू कैन कैलकुलेट A फ्रॉम P और F फ्रॉम A एंड समथिंग लाइक दैट एक्चुअली, जो कि है सर you can have a look at this topics. Moving on to the next topic, that is your surveying, which contains almost 8 to 10 marks actually of this year. सो देखिए अगर जो नया टॉपिक्स उसमें से क्वेश्चन है के चांसेस है GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग, बट आई वांट से कि उसके लिए बहुत कुछ नया पढ़ो, ओके, एट द सेम टाइम, बिकॉज आई वुड से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एकदम कंठस्थ होना चाहिए इसके GPS, GIS एंड रिमोट सेंसिंग के. बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल अदर टॉपिक्स दैट में कंटेन द ट्रैवर्स सर्वे, द करेक्शंस इन द चेन सर्वे एक्चुअली, एंड ऑल्सो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में देख रहा था बहुत सारे मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, तो आई डोंट नो इफ इट कैन एक्चुअली कम, मैंने पढ़ाया था आपके क्लास में अपने, दैट इज योर द वेट बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली, द एरर एनालिसिस करके चैप्टर आता है, दे आर द वेट बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली. फॉर एग्जांपल द वेट ऑफ A प्लस A इज दिस, द वेट ऑफ B इज दिस, ओके, व्हाट इज द वेट एसोसिएटेड विथ A प्लस माइनस B और A इंटू B समथिंग लाइक. तो इस तरीके से क्वेश्चन सर आ सकता है, तो उसका जो चार्ट है एक बार वेट वाला वो देख लेना एक बार. एंड ऑल्सो स्केल एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर. एंड इफ आई टॉक अबाउट लेवलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा रिलेटेड टू यू नो जियोरेटिक लेवलिंग, द करेक्शन वगैरह क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो द रेसिप्रोकल लेवलिंग बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द सेटिंग अप ऑफ थियोरोलाइट का जो चैप्टर है, सेटिंग अप ऑफ थियोरोलाइट, विच एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, कौन सा एक्सिस को क्या बोलते हैं, विच एक्सिस शुड बी पैरेलल टू विच एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू विच एक्सिस, ये जो चीज़ है, जो डिफरेंट 6 एक्सिस है उनमें जो रिलेशंस है वो जरूर देख लेना सर, ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट फोटोग्रामेट्री, उसमें जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ होता है, डी इज इक्वल टू RH/H करके, वो जो मैंने पढ़ाया था आपको, ट्राई टू नोट अबाउट दैट. फील्ड एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यू नो आप पढ़ सकते हो, बट यू नो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल बिट टफ टॉपिक, सो डोंट गो वेरी डीप इनटू इट. थोड़ा GMT LMT वाले प्रॉब्लम्स को देख लेना, और जो एकदम बेसिक्स है फील्ड एस्ट्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो जितना समझ में आ रहा है लास्ट मोमेंट में काफ़ी है. GMT LMT वाला प्रॉब्लम तो समझ में आएगा, दैट्स फॉर श्योर, ओके. एंड लास्ट बट नॉट दिस ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल जो है आपके एरिया वॉल्यूम का, बस वो रूल्स एक बार देख. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस बार, 50 to 16 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ट्रांसपोर्टेशन बोला हाईवे प्लस रेलवे, एयरपोर्ट, हार्बर डॉक एंड टनल इंजीनियरिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे की अगर मैं बात करूँ, यू कैन फेस 8 to 9 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, 8 क्वेश्चंस मान लेता हूँ मैं. सो इन हियर एक्चुअली ज्योमेट्री डिजाइन से तो क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी आने के चांसेस है, स्पेशली द वर्टिकल कर्व रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर, SSD रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर, सिग्नल डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर. सिग्नल डिजाइन में बहुत सारे मेथड मैंने करवाया था एक्चुअली इन द विजन बैच. आई हैव डन अ लॉट ऑफ मेथड्स एक्चुअली. फॉर एग्जांपल योर वन वाज योर ग्रीन टाइम मेथड, एक मैंने करवाया था आपको वो वाला मेथड क्या बोलते हैं जो नॉर्मल वेब स्टार मेथड. सो डिफरेंट मेथड सारे एक बार देख लेना, ठीक है, वाज दैट आउट. ट्रैफिक इंजीनियरिंग में मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूलाज होता है, यू नो, VF इंटू KG/4, ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चन है जरा देख सकते हो आप. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेवमेंट डिज़ाइन, पेवमेंट मटेरियल से तो क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है पेवमेंट मटेरियल से. एंड ऑल्सो पेवमेंट डिज़ाइन से द स्पेसिंग ऑफ द जॉइंट्स एक्सेट्रा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट पेवमेंट मटेरियल से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. एंड ऑल्सो यू नो रोटरी एंड स्टफ्स, यू कैन हैव रोटरी बेस्ड जो क्वेश्चन है यू कैन फेस ओवर देयर. रोटरी वीविंग रेशियो किसको बोलते हैं, वीविंग लेंथ किसको बोलते हैं, एक्सेट्रा जो डिफरेंट टर्म्स है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी, उसके रिलेटेड मानो आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया. आप जानते हो
मतलब जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है 280W इंटू 1+CW। अब मानो आपको बोल दे कि किसके साथ प्रोपोर्शनल है, किसके साथ डिपेंडेंट है, समथिंग लाइक इस तरीके से, बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला यू कैन हैव दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत जियोमेट्रिक डिजाइन से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट टर्म्स एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल कि स्लीपर किसको बोलते हैं, बैलेस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रोल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स एक्चुअली, टंग रेल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इट, रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जरूर देख लेना एक बार, एंड द जियोमेट्रिक डिजाइन न्यूमेरिकल्स। ओके, आई टॉक अबाउट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो सर बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पूरा देख लेना। मैं बता रहा हूँ एयरपोर्ट एंड टनल के प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन है सारे एक बार उठा के देख लो। ओके, आई वोंट गिव यू एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस बिकॉज बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, आराम से हो जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो इन हार्बर डॉक आई एम नॉट गोइंग टू वेरी मच एलाबोरेट ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली, क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट कमिंग टू योर RCC, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हियर फ्रॉम यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 15+ क्वेश्चंस। यहाँ पे सर देखिए क्वेश्चन जो कि आ सकता है मेनली that is from slab surely question will come, and from pre-stressed concrete surely question will come sir। slab और इससे PSC से जरूर सर देख लेना। एंड सर जो बेसिक आपके होते हैं ना वो स्पेसिंग निकालने के लिए वो एक फॉर्मूला होता है A/BSV इज मोर देन इक्वल टू 0.4/0.87 इस तरीके से फॉर्मूला होता था। एंड ऑल्सो दैट वो जो कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स बैलेंस करके यू नॉर्मली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रीइंफोर्समेंट टू बी यूज्ड, ये भी एक फॉर्मूला होता था। दैट ऑल्सो दैट फ्रॉम देयर ऑल्सो क्वेश्चन कैन कम। एंड एक मैं ट्रेंड देख रहा था बहुत ज़्यादा आ रहा था वो, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम प्लास्टिक एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर में बताऊंगा, एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑल्सो, दैट इज दैट वो सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा था। समटाइम्स टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, समटाइम्स टू फाइंड आउट द समथिंग, बट इट्स बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेस डायग्राम। समझ पा रहे हो आप? दैट इज सिमिलर ट्रायंगल से जो क्वेश्चंस बनता है ना डायग्राम वाला, दैट यू कैन एक्चुअली हैव। ओके, एंड वो वाटर टैंक रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, एक बार देख लेना जरूर द वाटर टैंक रिलेटेड क्वेश्चंस, मोमेंट एट द बेस कितना होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, जरूर एक बार देख लेना। दैट्स ऑल। इफ आई टॉक अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अंडररेटेड टॉपिक है, ये डिफरेंस क्रिएट करने वाला टॉपिक है सर। 8 to 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे सर यू कैन डेफिनेटली will expect questions from plastic analysis से question आएगा, collapse load and mechanism related questions, mechanism related conceptual questions also, mechanism equilibrium related conceptual question you can expect actually। And if I talk about plastic analysis in detail, plastic analysis 2 से 3 question you can expect actually मेरे ख्याल से। and continuous beam में किस तरीके से collapse load निकालते एटसेट्रा देख लेना, एक बार मैं सिखाया था। और द ब्लॉक शेयर इफेक्ट वो नया ने इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन आने के उसमें से चांसेस है, एक बार ब्लॉक शेयर इफेक्ट क्या होता है एक बार देख लेना। एंड माय लास्ट क्लास एक्चुअली बीम गर्डर एंड ट्रस वाला क्लास है मेरा, अभी भी है। मैं आज भी टेलीग्राम चैनल में अपना लिंक शेयर कर दूंगा, उसका जरूर जाके देख लेना वो क्लास। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ इसके बाद ही जस्ट वीडियो के, दैट इज बीम गर्डर एंड ट्रस, इसका एक फ्री सेशन है ऑन ऐप। ये सेशन जरूर देख लेना, आज ही देख लेना। ओके, because more questions are expected from this part actually according to me। टेंशन मेंबर में वो एंगल सेक्शन वगैरह क्वेश्चंस आ सकता है आपको। एंड लास्ट बट नॉट दिस इज जो कॉलम बेस में जो बेस प्लेट का थिकनेस व्हाट इज इट, कॉलम स्प्लाइस कौन से लोड लेते हैं, वेब स्प्लाइस किस तरीके के लोड लेते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फेस ओवर देयर। ओके, moving on to the next important topic is your geotech। geotech sir you can expect almost 12 to 14 questions definitely in geotech। इसमें सर एक चीज है which is very very important, that is your compaction। geotech का पूरा रिवीजन PDF मेरे ग्रुप पे पोस्टेड है, मेरे चैनल पे भी पोस्टेड है टेलीग्राम के, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे सम ऑफ द चार्ट्स एंड टेबल्स एंड समथिंग आर देयर। सो स्टील का भी मैं PDF पोस्ट कर दूंगा, मे बी आज रात के अंदर पोस्ट कर दूंगा। रिवीजन क्लास आई हैव ऑलरेडी टेकन बट PDF पोस्ट कर दूंगा आज। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट जियोटेक एक्चुअली, जियोटेक में कंपैक्शन के जो चैप्टर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वेट ऑफ ऑप्टिमम, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में क्या क्या होता है उसका पूरा कंपैरिजन चार्ट में दिया हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमिएबिलिटी, सीपेज, कैपिलरिटी, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यू कैन हैव, सो प्लीज गो थ्रू जितने सारे असर्शन, रीजन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है फॉर दिस चैप्टर्स, फ्रॉम दिस चैप्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट शेयर स्ट्रेंथ से सर क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी आएगा, तो जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जरूर देख लेना सर। इफ आई टॉक अबाउट द फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एक्चुअली फाउंडेशन इंजीनियरिंग जाने से पहले वेन शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, जो टेस्ट है शेयर स्ट्रेंथ के स्पेशली देख लेना उसको एक बार। इफ आई टॉक अबाउट योर फाउंडेशन इंजीनियरिंग,
नॉर्मली देखो पाइल फाउंडेशन जो डीप फाउंडेशन उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है. शैलो फाउंडेशन जो आपके प्लेट लोड टेस्ट होता है SF/SP इज इक्वल टू BF इंटू बी प्लस पॉइंट होल स्क्वायर, वो वाला जो फॉर्मूला फॉर सैंड क्या होता है, फॉर क्ले क्या होता है, एंड ऑल्सो द डिफरेंट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो मैंने आपको सिखाया था, दैट फॉर एग्जाम्पल रिजिड फुटिंग क्ले सॉइल किस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, किस तरीके से डिफ्लेक्शन का कर्व होगा. ये जो 4 पैटर्न होता था टोटल, वो एक बार देख लेना जरूर. एंड इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला और जो फॉर्मूलाज वगैरह है आपके डीप फाउंडेशन में, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर्स एंड इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला, यू नो या फिर स्टैटिक कोन टेस्ट, SPT एटसेट्रा, ये सब किस में यूज होता है, जो टेस्ट होता है, किस में यूज होता है, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. ट्राई टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट द फॉर्मूला स्पेशली. परमेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैंने बोल दिया आपको. परमेबिलिटी, सीपेज एंड योर कैपिलरिटी जरूर देख लेना. मूविंग ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें सर जो कि 2 चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार बता रहा हूँ. एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, पूरे जो प्रीवियस ईयर है जरूर उठा कर देख लेना. डिसइंफेक्शन इस बार मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लग रहा है. डिसइंफेक्शन के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लोरीन डोज, डिमांड एटसेट्रा, और जो डिसइंफेक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक बार देख लेना. सीवर डिजाइन ऑफ सीवर जो है सर, दैट इज इंपॉर्टेंट. हैव अ लुक एट दैट. एंड अल्कलिनिटी हार्डनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस है. SOR रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस है. एंड इफ आई टॉक अबाउट MSW और द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक्चुअली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आई वुड से 2 चीज़ जरूर देख लेना. वन इज योर वो आपके डेंसिटी, ओवरऑल डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं, वाटर कंटेंट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसको जरूर देख लेना. BOD रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट. एंड योर ASP रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलते. ASP पे मतलब जो टर्म वगैरह है वो जरा देख लेना एक बार. F/M रेशियो क्या होता है, कैपिटल U सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MCRT यानी कि स्लजेज क्या होता है, जस्ट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फेस. एंड अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था, इन जियोटेक दैट इज योर कंसोलिडेशन से मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस बार. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और मल्टीपल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन से जरूर देख लेना. इफ आई टॉक अबाउट SOM, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू नो ऑलमोस्ट 16+ इज द वेटेज एक्चुअली. 15 to 16+ आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां से. ऑब्वियसली इलास्टिक कांस्टेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो हर बार आता ही है, एक बार वो रिलेशन वाला चीज इस बार भी आने के चांसेस है. पूरे प्रिंसिपल स्ट्रेस जो मोर सर्कल वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस कर लेना. टॉर्क जो क्वेश्चन है, टॉर्क एंड शाफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. थियोरीज ऑफ फेलियर देख लेना एक बार. एंड डिफ्लेक्शंस में कौन से बीम में किस तरीके का लोड में किस तरीके का डिफ्लेक्शन हो रहा है, एटसेट्रा बेस्ड क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है. कभी स्प्रिंग वगैरह भी डाल देते, ये ट्रेंड है अभी नया. स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड से दैट इज योर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सर क्वेश्चन आने के पूरे के चांसेस है. डिटर्मिनेशन, आर्चेस एंड केबल्स, ये 3 चीज एटलीस्ट देख लेना. मैट्रिक्स मेथड से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो एक बार देख लेना. कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, जरूर हैव अ लुक एट दिस. दैट्स ऑल एक्चुअली. एंड मॉक टेस्ट डेट्स, मॉक टेस्ट के जो डेट्स है एक्चुअली, दैट इज योर 1 मॉक टेस्ट विल बी टुमारो, दैट इज वेडनेसडे एट 10 AM. बिल्डिंग मटेरियल के क्लास रिवीजन सेशन, लास्ट मोमेंट रिवीजन चल रहा है एवरी डे एट 4 PM. सारे लिंक्स टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट जो है, टुमारो देयर इज 1 मॉक टेस्ट दैट इज एट एग्जाम टाइम एग्जैक्टली 10 AM ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग पीपल, ओनली टेक एक्चुअली. नेक्स्ट डे दैट इज योर थर्सडे 8 AM. मैं आपको सुबह जगाने की कोशिश कर रहा हूँ. सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट है. सारे मॉक टेस्ट ऐप पे होगा, पोल बेस्ड लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा. सब लिंक टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएगा इन टाइम, बिफोर टाइम एक्चुअली. तो 8 बजे थर्सडे को पेपर 1 फुल मॉक टेस्ट. 16th दैट इज माय लास्ट डे फॉर टेकिंग मॉक टेस्ट. सुबह एक मॉक टेस्ट 8 AM सुबह फ्राइडे, एंड 1 मॉक टेस्ट एट 4 PM. And also on Thursday, I believe, there is 1 mock test of building material and construction. Construction material and management दोनों का ही मैं ले लूंगा एक
combined mock test, because that constitutes 26 questions, almost 26 or 27 questions पिछले बार आया था. So which is really huge part. तो मैं सोचा कि उसके ऊपर एक अलग से mock test ले लो on Thursday and Friday. So that's all actually. Hope you have enjoyed the video in the last moment. So please do share this video with other people so that they can also have a last minute suggestion. So, okay. Thank you. Bye bye. Take care everybody. Meeting you. And do join my Telegram group and channel. और मेरे channel पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना. Have a nice day.